children, hope all of us are doing good. The topic that we will study today is food and health. Now the things we will learn are food groups, balanced diet, healthy cooking habits, exercise and rest. Now all of us need food in order to stay healthy and alive. Food gives us energy to work, it keeps us fit and healthy. We get fruits, vegetables and grains and pulses from plants. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबको जिंदा रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए खाने की ज़रूरत पड़ती है। खाने से हमें एनर्जी मिलती है ताकि हम काम कर सकें, फिट रहें और हेल्दी भी रहें। तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, पल्सेस ये सब क्या हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं और हम इन्हें खाते हैं। थिंक, डू यू ईट फूड फ्रॉम ईच फूड ग्रुप एवरी डे? नाउ वी गेट मीट, एग्स, हनी, मिल्क, चीज़, बटर एंड घी फ्रॉम एनिमल्स। जैसे हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, पल्सेस प्लांट से मिलते हैं, इसी तरह से मीट, एग्स, हनी, मिल्क वगैरह जो हैं एनिमल से मिलते हैं। नाउ लेट अस लुक एट दी फूड ग्रुप्स. The food that we eat should have a combination of 5 main nutrients: proteins, carbohydrates, fats, vitamins and minerals. Our body requires all these nutrients to stay healthy. तो healthy रहने के लिए ज़रूरी है कि जो 5 मेन न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, इन सब में से हम चीज़ें खाएं. नाउ लेट अस लुक एट प्रोटीन्स, which are also known as the body building nutrients. Our body needs to develop new cells to grow and to replace old and damaged ones. So proteins are required for muscle building and repairing worn out tissues. Meat, curd, milk, cheese, eggs, pulses and soya beans are some sources of proteins. ग्रोथ के लिए हमारी बॉडी को ज़रूरत है कि नए सेल्स ग्रो करें या डेवलप हों, जो पुराने सेल्स हैं उनको हम रिप्लेस कर सकें और जो सेल्स डैमेज हो गए हैं उनको रिपेयर कर सकें. तो इन सब चीज़ों के लिए हमें प्रोटीन्स की नीड होती है. नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स. These are the energy giving nutrients. These provide energy to our body. These contain sugar and starch. Rice, banana, wheat, corn, potatoes and bread are some sources of carbohydrates. तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से. ये ज़्यादातर जो हैं शुगर और स्टार्च के फॉर्म में होते हैं. नेक्स्ट वी हैव फैट्स. Fats are also energy giving nutrients. They give us more energy than carbohydrates. This energy can be stored in the body for later use. Fats also help to keep our body warm. Oil, butter, ghee, cheese and cream are rich in fats. Fats जो हैं ये भी energy giving nutrients हैं. ये कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देते हैं और ये जो ज़्यादा एनर्जी है ये हमारी बॉडी स्टोर कर लेती है ताकि बाद में इसी एनर्जी को यूज़ कर सके. और फैट की वजह से ही हमारी बॉडी को वार्मथ भी मिलती है. Now it is a fact, excess intake of fat can lead to a condition called obesity, which is harmful to the body. Obesity can cause heart diseases and diabetes. Next we come to vitamins and minerals. These are also the protective nutrients. So vitamins keep us healthy. Vitamin A, B, C, D, E and K are needed for normal functioning of our body. These help us to resist diseases and stay healthy. फ्रूट्स, फिश एंड लीफी वेजिटेबल्स आर गुड सोर्सेज ऑफ वाइटामिन्स. तो वाइटामिन्स जो हैं ये हमें हेल्प करते हैं कि हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शन कर सके और ये ऑल्सो हमें हेल्प करते हैं कि हम जितनी बीमारियां हैं उनसे बचे रहें, उनको फाइट करें और हेल्दी रहें. Then minerals like iron, calcium and iodine are required in small quantities by our body. They perform functions like strengthening bones and maintaining normal heartbeat. मिल्क, फिश, एग्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन मिनरल्स. तो जो मिनरल्स हैं वो हमें बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं. ये जो हैं हमारी बॉडी के बड़े सारे फंक्शंस में हेल्प करते हैं और इनकी मदद से हमारी जो बोन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं और हमारी हार्ट बीट नॉर्मल रहती है. नेक्स्ट वी कम टू रफेज. Roughage is the fiber obtained from vegetables, fruits and coverings of cereals and pulses. It helps us to digest the food and get rid of the waste matter from the body. It keeps the digestive system clean. तो vegetables, fruits और cereals और दालों के जो छिलके होते हैं उनसे हमें मिलता है फाइबर जिसको हम रफेज कहते हैं. रफेज की वजह से हम खाने को अच्छे से डाइजेस्ट कर सकते हैं और जो बॉडी के अंदर वेस्ट मैटर इकट्ठा हुआ है उसे बाहर निकाला जा सकता है या इनकी मदद से ही हमारा सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो साफ रहता है. देन वी कम टू वाटर.
Water helps to remove the waste from our body in the form of sweat and urine. Blood and digestive juices in the stomach also contain water. Lack of water does not let the body organs work properly. So we must drink more than 8 glasses of water every day. हमारे बॉडी के अंदर से वेस्ट निकलता है स्वेट और यूरिन के फॉर्म में, उसके लिए पानी की ज़रूरत होती है. हमारे स्टमक में जो ब्लड और डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनके अंदर भी पानी होता है. बॉडी में अगर पानी की कमी हो तो हमारा जो ऑर्गन्स हैं वो ढंग से काम नहीं कर सकते. इसलिए ज़रूरी है कि रोज़ आप 8 ग्लासेस से ज़्यादा पानी पिएं. Now let us look at balanced diet. The food that we eat is called our diet. A balanced diet gives the required nutrients to our body every day. A balanced diet has the right quantity of nutrients from each food group. A balanced diet is not the same for everyone. तो जो हम खाना खाते हैं वो हमारी डाइट है. जब इस खाने में सारा न्यूट्रिशन जो हमारी बॉडी को रोज़ चाहिए वो मिलता है तो हमारी डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं. और डाइट को बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है कि जितने भी फूड ग्रुप्स हैं उनमें से हमें सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिलें. Now a child needs a lot of energy giving food, an office worker needs less of energy giving foods. तो हर किसी के लिए डाइट जो है वो सेम नहीं होती है. रिक्वायरमेंट क्योंकि सबकी अलग है. जो छोटे बच्चे हैं उनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, लेकिन जो ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं उनको एनर्जी कम चाहिए. अ बेबी नीड्स मोर प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स दैन एन ओल्डर पर्सन. इसी तरह से किसी बड़े के मुकाबले में अगर आप छोटे से बेबी को देखेंगे तो उसको प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा चाहिए. A food pyramid helps to identify different food items to make our diet healthy. Now different food groups are represented from the bottom to the top in this food pyramid. Now the food items at the bottom are to be eaten in greater quantity than those at the top of the food pyramid. तो हमारे जितने भी फूड के अलग अलग आइटम्स हैं या जो हमारा डाइट में अलग ग्रुप्स हैं खाने के, वो इस पिरामिड को अगर आप देखेंगे तो ये हमारा फूड पिरामिड है उसमें है. जो सबसे नीचे आते हैं जो कि हमारे ब्रेड, सीरियल्स, राइस वगैरह हैं, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये हमें सबसे ज़्यादा चाहिए होते हैं. और फैट क्योंकि हमें सबसे कम चाहिए तो वो हमारे फूड पिरामिड में सबसे ऊपर आता है. नाउ लेट अस लुक एट हेल्दी कुकिंग हैबिट्स. Wash hands and utensils and clean the cooking area properly before and after cooking food. Foods which are eaten raw should be washed properly so that dirt, germs and chemicals are removed properly. Then food items should not be overcooked as this can destroy the nutrients. For longer periods, food should be preserved by freezing, canning, drying etc. But it is always better to eat फ्रेश फूड. तो आप खाना बनाने से पहले हाथ साफ़ करें. जिन बर्तनों को यूज़ कर रहे हैं उनको अच्छे से साफ़ करें. जहाँ पे आप खाना पका रहे हैं वो जगह जो है खाना बनाने से पहले और बाद में अच्छे से साफ़ रखें. फिर जो खाना हम बिल्कुल ही रॉ खाते हैं बिना कुक करे, उसको बहुत अच्छे से साफ़ करें ताकि वो गंदगी उसमें कुछ भी ना हो. और खाने को ज़्यादा ना पकाएं. ओवर कुक करने से खाने के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं. और अगर ज़्यादा टाइम तक फूड को आपने संभाल के रखना है तो फ्रीजिंग, कैनिंग, ड्राइंग वगैरह का आप इस्तेमाल कर सकते हैं. नाउ लेट अस लुक एट एक्सरसाइज. It is necessary to exercise regularly to keep ourselves fit. Regular exercise tones up the muscles. It helps to use the fat stored in our body. Then it keeps the joints healthy. Exercise improves blood circulation. With exercise, we breathe faster and deeper. This is good for the lungs. Then sweating helps to get rid of body waste. अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आप फिट रहते हैं, क्योंकि इससे आपके एक तो मसल्स टोन हो जाते हैं, आपके बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो रिमूव होता है, बर्न होता है, आपके जॉइंट्स हेल्दी रहते हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, आप ज़्यादा डीप जो है ब्रीथ करते हैं जो आपके लंग्स के लिए अच्छा है, और पसीना आता है जिससे कि बॉडी का वेस्ट बाहर निकल जाता है. नाउ लेट अस लुक एट रेस्ट. Sleeping is the best way to give adequate rest to the body. When we sleep, the body system also rests. After rest and sleep, we feel refreshed. Rest also gives the body a chance to repair any wear and tear and helps the body to grow.
जैसे बाकी चीज़ें ज़रूरी हैं, रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। सोने से हमारे बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं उनको रेस्ट मिलता है। अच्छा रेस्ट मिले और अच्छी नींद आए तो उससे हम बहुत ही फ्रेश फील करते हैं और इससे हमारी बॉडी को एक चांस मिलता है कि जितनी भी बॉडी के अंदर वेयर एंड टियर हुई है वो रिपेयर हो जाए और बॉडी अच्छे से ग्रो करे। नाउ लेट अस टेक अ क्विक recap. All of us need food in order to stay healthy and alive. Our body requires all the nutrients to stay healthy. Roughage helps us to digest the food and get rid of the waste matter from the body. Lack of water does not let the body organs work properly. A balanced diet has the right quantity of nutrients from each food group. It is necessary to exercise regularly to keep ourselves fit. Sleeping is the best way to give adequate rest to the body. So I hope that this chapter is clear to all, and answering questions based on this chapter will now be easy.